मेरे छोटे ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੱਥਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡਲਹੌਜੀ ਰੋਪਵੇ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ मैं 1 मिनट लिए कहूँगा मानयोग मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो विचार रखें। मैं सीएम साहब का, पंजाब के मान साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा दृष्टिकोण वाटर सेस से संबंधित सीएम साहब से मिलने का था और विस्तृत चर्चा हुई, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमने पानी पर सेस लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने अपना स्पष्ट किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जो 172 हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जहां हाइड्रो जनरेट होती है डैम के लेवल पर, वहां हमने वाटर सेस लगाया है। और वाटर सेस के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर कि पहले इसको चीफ सेक्रेटरी लेवल की कमेटी पर सेटल करने की बात है और हमने इनके अनुरोध को स्वीकार किया कि चीफ सेक्रेटरी हमारे हिमाचल प्रदेश के और पावर सेक्रेटरी सब लोग आएंगे और इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे और कैसे आगे बढ़ा जाएगा उस दृष्टिकोण से बात की गई है। पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ है नहीं, लेकिन एक मसला है BBMB का, उस मसले में चीफ सेक्रेटरी महोदय यहाँ आएंगे। दूसरा बात थी शानन प्रोजेक्ट्स की, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। उसकी लीज़ 2024 में ख़त्म हो रही है, किस दृष्टि से हमने वो काम करना है उस बारे में बात की है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अनुरोध किया है कि हम चाहते कि आनंदपुर साहिब से नैना देवी का जो रोपवे प्रोजेक्ट्स है धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी ने कहा तो हम उस प्रोजेक्ट के डीपीआर और उसमें आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। डलहौजी और पठानकोट की इन्होंने बात की है, टूरिज़्म के से संबंधित जो पंजाब के मसले हैं हिमाचल में उनसे संबंधित इन्होंने बात की और हमने कहा है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे और हर 15 दिन बाद संवाद करके जो समस्या है उसका बैठकर हल निकालेंगे। तो इस दृष्टि से मैं एक स्पष्टीकरण भी देना चाहता था कि वाटर सेस से ना तो पंजाब को नुकसान होगा ना हरियाणा को नुकसान होगा। ये ठीक है कि जनरेशन पावर की जो होती है उसमें थोड़ा बहुत कैसे सेटल किया जा सकता है वो मिल बैठकर हम समस्या का समाधान करेंगे। और इन्होंने हमें नाश्ते पर बुलाया था और हमने इनका नाश्ता भी किया और अब हम इनसे अनुरोध करेंगे कि अब हिमाचल आइए और हिमाचल में आप पैसे वाली राज्य है, हिमाचल में भी कुछ इन्वेस्ट करिए तो आगे हमारे यहाँ भी कुछ उत्थान होगा। और कुछ बिजली से संबंधित भी बातचीत हुई है कि जब पीक सीज़न होता है जो पंजाब में पैडी सीज़न उस समय हमें बिजली चाहिए होती है, तो उस सिलसिले में भी हिमाचल से बातचीत हो रही है कि अगर हमें यहाँ से सस्ती पड़ती है तो हमें जो दूर के राज्य हैं वहाँ से मंगवाने में महंगी पड़ती है, ट्रांसमिशन के खर्चे कम होते हैं। तो यहाँ से भी इनको भी फ़ायदा होता है कि इनका पीक सीज़न में इनको बिजली जो है वो इन्होंने देनी होती है किसी न किसी और राज्य को, उनका भी ट्रांसमिशन का खर्चा कम होता है। तो मिल बैठ के चलेंगे और हिमाचल का कल्चर पंजाब का कल्चर मेल खाता है, तो इसीलिए सीएम साहब भी कह रहे थे, उनके अफसर भी कह रहे थे कि हमने यहाँ तो आपके हिमाचल में बहुत से जो फेस्टिवल होते हैं वो बहुत मैं परफॉर्म करने जाता था, चाहे वो हमीरपुर, चाहे वो शिवरात्रि हो मंडी की, चाहे रिकांगपिओ हो या कुल्लू का दशहरा। तो पंजाब और हिमाचल तो आपस में 9 मास का रिश्ता है और रिश्ता ऐसे ही कायम रहेगा। बड़े पंजाब बड़ा भाई है, हिमाचल छोटा भाई है, भाइयों में तो प्यार रहता ही है। थैंक यू। हरियाणा में भी अब नहीं है, की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया गया था, हरियाणा की तरफ से भी वाटर सेस को लेके, तो अब ये बात उसी सिलसिले में बातचीत हुई है, उसी सिलसिले में बातचीत हुई है। कोई मिसकम्युनिकेशन इस तरह का हो गया कि शायद सारे पानी पे टैक्स लगाया जाएगा, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया आने वाले दिनों में विद इन दिस वीक चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी लेवल की दोनों राज्यों की मीटिंग होगी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा।